Hello students, a very warm welcome to you all and welcome to Edifly JEE NEET Probal Batch. Previous class में हमने क्या पढ़ा था? About the process of oogenesis, okay? That is the female reproductive system के बारे में हमने पढ़ा था. आज हम पढ़ने वाले about the ovarian cycle. Very interesting chapter about the ovarian cycle. That is menstrual cycle, okay? चलो. Today we are going to study about this chapter. Let's begin today's class. Okay, let me change the ink color. Yeah, that's good. Chalo. First, what is menstrual cycle? That is ovarian cycle is nothing but menstrual cycle. The same terminology is same. उसको कोई ovarian cycle के नाम से भी जानते हैं, menstrual cycle. Okay. Menstrual cycle जो है एक natural change है, that is regular. Okay. That is regular and that is the natural change जो कहाँ होते हैं? Female reproductive system. Specifically कहाँ होता है? Uterus and the ovaries. And that will make the pregnancy possible. If a woman doesn't follow menstrual cycle, that means she cannot be pregnant forever. That is very important thing about the menstrual cycle. Menstrual cycle का बहुत important role होता है female reproductive system में. अगर menstrual cycle is continuing, that means that female can give birth to young ones. Okay? अगर वो menstrual cycle नहीं follow करती है या कुछ irregularities है या any hormonal issues is there in her body, then she can't give birth to the child. Okay? Clear है सबको? Clear है? बहुत अच्छा topic है आज का हमारा. Specifically the uterus and ovaries. Okay? यूट्रस और ओवरीज दोनों में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो रेगुलर नेचुरल चेंज होते हैं. ठीक है ना? यूट्रस जिसमें बेबी होते हैं, वॉम्ब जिसको हम मदर वॉम्ब कहते हैं, इसमें ही बेबी क्या होते हैं? रहते हैं. और ये जो यूट्रस में जो बेबी के साइज के अनुसार जैसे यूट्रस की साइज इंक्रीज होती है वो कैसे होते हैं? ऑल बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स दैट used to play important role in our body. Okay? जो हम हार्मोन्स के बारे में डिटेल्स में धीरे धीरे inside the depth of this topic will discuss. Okay? The cycle is required for production of oocytes and for the preparation of pregnancy. तो बहुत important लाइन ये कहा गया है. ठीक है? ये जो साइकिल है क्यों जरूरी है? अगर ये साइकिल नहीं होता है तो क्या हार्म होगी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? हम ये होगा कि अगर वो oocytes प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, oocytes नहीं करेगी, एग रिलीज नहीं होगा, तो वो औरत प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है. दैट मीन्स दैट वोमेन कांट बी प्रेग्नेंट. क्लियर है सबको? तो इसीलिए दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ फीमेल्स. ओके? दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी. क्लियर है? तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम पढ़ने वाले डिटेल्स जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, द बेसिक अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो अब हम बात करते हैं एवरेज. द एवरेज एज, मेनार्क मतलब जो मेंस्ट्रुएशन जिसको कहते हैं, और यू कैन से पीरियड्स, और यू कैन से मेंसेस. ठीक है ना? तो मेनार्क दैट मीन्स कि कब एक फीमेल में पीरियड्स यूज टू स्टार्ट. एज इज 12 to 15 ईयर्स. 12 से 15 के बीच में एक फीमेल still attain her puberty. That means she will be starting her periods at this age, that is from the age of 12 to 15. Clear है सबको? This cessation of menstrual cycle at the end of a woman's reproductive period is termed as menopause. Cessation मतलब कंप्लीट हो जाना, कंप्लीट, और यू कैन से ओवर, इट्स ओवर ना. तो जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है ना, दैट इज टिल 52 मैक्सिमम 50 to 52 years. Okay? Some women's they has their menopause from 45 से 50 starting हो जाती है. Okay? Between 45 to 50 woman stops bleeding. That means her menstruation period is over, and after that years, that is after 50, she can't be pregnant, or you can say before 45 she has to give
birth to the baby. After 45, there is no chance of delivering the baby because of the menopause. That is, if the period stops, that means her menopause, she has attained her menopause and she want to be delivering the baby again. Okay, so it's always advised by the doctors that you do the babies before 30 or before 40, then it's good, because it happens that due to, देखिए क्या होता है कि आजकल nowadays what happens is that in food you're not consuming the pure food. There is always the mixture of many things because of the pollution, because of the environment level and all. The women, they are attending, they are their menopause, many females from 40 or 42, they are starting their menopause. That means because of the environmental changes, okay, the body also shows the different changes. Okay, so the women after 40, 41, 42, they start attending their menopause. That means the period stops. Okay, average menstrual cycle lasts for 28 days. ओके, एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज का होता है, बट इट्स नॉट लाइक कि 28 डेज इट्स द नॉर्मल वन, द एवरेज वन, बट फीमेल कैन हैव साइकिल फ्रॉम 35 till 35, दैट इज 28 डेज टू 35 डेज का साइकिल जो होता है, दैट इज नॉन एज द नॉर्मल साइकिल. क्लियर है? दैट इज नॉन एज द नॉर्मल साइकिल. But you can see some female, they won't be following this 28 days. Some female might be having their next period after 30 days or 32 days. So 28 to 35 days is normal cycle, but beyond that if exceeds, that means some serious issues or some hormonal problems is going in their female body, and that case you have to take advice from the doctor. Okay, चलो, clear है? बहुत interesting, right? The menstrual cycle is governed by hormonal changes. Menstrual cycle में बहुत सारे hormonal changes होते हैं जो हम अभी बताने वाले हैं. ठीक है, each cycle, the menstrual cycle में, menstrual cycle के बारे में बता रहे हैं. Each cycle can be divided into 3 phases. Okay, 3 phases based on events in the ovary. So that means 2 cycle होते हैं. One is ovarian cycle, the second is uterine cycle. Ovarian cycle में कौन कौन से hormone changes होते हैं? And in case of uterine cycle, which type of hormones used to change? That I am going to discuss in my next slides. Okay, चलो. Ovarian cycle में 3 important phases होते हैं. That is follicular, ovulation, luteal phase. 3 phase. Uterine में क्या होते हैं? 3 होते हैं. फिर menstruation, proliferative and secretory phase. तो ये 6 phase हमने पढ़ने वाले हैं. पहले एक ओवेरियन साइकिल के बारे में, दूसरा यूट्रिन साइकिल के बारे में. ठीक है, चलिए. ओवेरियन साइकिल का सबसे पहला है फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज कहने का मतलब क्या होगा? फॉलिकल्स. फॉलिकल्स क्या होंगे? मैच्योर होंगे. मैच्योर कैसे होंगे, कौन से हॉर्मोन्स काम आएंगे, वो पढ़ने वाले. ठीक है. ड्यूरिंग दिस फेज, दैट इज ड्यूरिंग दिस फॉलिकुलर फेज, ovarian follicles mature and get ready to release an egg. क्लियर है? follicles क्या होगा? follicular phase में follicles पहले mature होंगे, पहले प्राइमरी follicle होंगे. ठीक है, जैसे मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको बताया भी था, पहले प्राइमरी होंगे, फिर धीरे धीरे सेकेंडरी, टर्शरी और फिर मैच्योर follicle होंगे. एंड दैट, अगर मैच्योर हो गए follicles, दैट follicle इज रेडी टू रिलीज एन एग. एग रिलीज हो गया. ठीक है, क्लियर है? Through the influence of rise in follicle stimulating hormone, these follicles are present in birth. अब ये जो एग रिलीज हुआ, इसमें कौन से हॉर्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल हुआ? दैट इज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. रिमेंबर, ठीक है, ये जो फॉलिकल्स मैच्योर हुए, एग रिलीज करने के लिए हो गए, इसमें कौन सा हॉर्मोन्स काम कर रहे हैं? दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक पॉइंट में हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल होगा जो अब मैं आपको बताते चलूंगी. ठीक है. एंड ये जो फॉलिकल्स है, ये बर्थ के टाइम से ही, ये बर्थ के पहले से ये जो हार्मोन्स हैं, दिस फॉलिकल्स, ये जो फॉलिकल्स है बर्थ के पहले से ही प्रेजेंट है. दिस फॉलिकल्स है प्रेजेंट एट द बर्थ इवेंट. ओके.
During this phase, estradiol suppresses production of luteinizing hormone from the anterior pituitary gland. इस फेज में क्या होता है, एस्ट्राडियोल भी एक हार्मोन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, एस्ट्राडियोल क्या करते हैं ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, वो एलएच हार्मोन, जो एलएच हार्मोन है, अभी हम नेक्स्ट फेज जो पढ़ेंगे ओवेरियन में, ओवेरियन साइकिल का, उसमें आपको बताएंगे डिटेल्स में, ठीक है. तो जो व्हेन दिस एस्ट्राडियोल प्रोडक्शन क्या होता है, एस्ट्राडियोल जैसे हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं वैसे एलएच हार्मोन को सप्रेस कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. सबसे याद रखना कि हमारा जो ब्रेन है, और ब्रेन हैज ऑल द कंट्रोल फॉर हार्मोन्स, इमोशंस, एवरीथिंग. ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल करता है, एवरीथिंग ब्रेन का ही कंट्रोल है. अगर ब्रेन का किसी दिन कुछ भी हो जाता है तो हमारी बॉडी की सारी मेटाबॉलिक सिस्टम खत्म होने वाली है, ठीक है. ब्रेन में ही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहीं से ये हार्मोन रिलीज होते हैं, दैट इज एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. क्लियर है. चलो, नेक्स्ट फेज इज ओव्यूलेशन. इस फेज में क्या होते हैं, मैच्योर एग, जो मैच्योर एग फॉलिकुलर फेज में एग मैच्योर हो गए थे, क्लियर है ना, वो मैच्योर एग क्या करेंगे, इट विल गेट रिलीज फ्रॉम द ओवेरियन फॉलिकल्स इनटू द ओविडक्ट. ओवेरियन फॉलिकल से ओविडक्ट में रिलीज हो जाएंगे. that egg which were matured in case of follicular में egg matured हो जाएंगे, follicles matured हो जाएंगे with the help of FSH, that is follicle stimulating hormone. That mature egg will released from the ovarian follicles and that period हम क्या कहते हैं उसको, ovulation period. इस पीरियड में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होती है फीमेल की, टेम्परेचर रिमेन्स हाई, एंड दिस पीरियड, दिस ओव्यूलेशन पीरियड क्या होता है, कंसीव, अ फीमेल कैन कंसीव द मेल स्पर्म. whenever a couple is trying for a baby, then they has to copulate within this period, that is ovulation period. If they'll copulate, if they'll mate with each other before ovulation 4-5 दिन पहले या 2 दिन पहले भी करोगे mating, then also the conceiving can be possible. Okay, so at this phase only, ovulation period में क्या होता है, conceiving is very easy because at that time the uterus opens, the cervix opens, and that it becomes very easy for the sperm to swim and reach to the fallopian tubes. Okay, chalo, when the egg has matured, levels of estradiol reach a threshold above which this effect is reversed and estrogen stimulates the production of large amount of LH. जब एग मैच्योर्ड हो गया, ओके, एग मैच्योर्ड होने के बाद रिलीज हो गया, विडक्ट में चला गया, तो एस्ट्राडियल जो हार्मोन्स मैंने अभी फॉलिकुलर फेज में बताया था आपको, उसकी जो लेवल होती है वो थ्रेशोल्ड के अबव, मतलब जो हार्मोन की जो लेवल चाहिए बॉडी में उससे अबव हो जाते हैं. एंड विच दिस अफेक्ट, ये जो इफेक्ट होगा थ्रेशोल्ड के अबव होने के बाद, किसी भी चीज़ अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है उसके साथ एडवर्स इफेक्ट होता है. ठीक क्या होता है, एस्ट्राडियल जब थ्रेशोल्ड के ऊपर हो जाता है, थ्रेशोल्ड मतलब बियॉन्ड दैट जो हार्मोन्स की लेवल होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि एस्ट्रोजन वहाँ क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स काम आते हैं, वो क्या करते हैं उस इफेक्ट को रिवर्स कर देते हैं. उस हार्मोन जो एस्ट्राडियल जो थ्रेशोल्ड के अबव चला गया था उसको सप्रेस करके फिर नीचे लेते आएंगे. एस्ट्रोजन क्या करेगा, स्टिमुलेट्स कर देगा, प्रोडक्शन क्या करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एलएच अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ज़्यादा करके रिलीज कर देगा तो फिर जो एस्ट्राडियल है अपने नॉर्मल लेवल तक चलाएगा. क्लियर है. द प्रोसेस नॉन एज एलएच सर्ज starts around day 12 of the average cycle and may last 48 hours. Okay, तो ये जो LH सर्ज है, that means large amount of LH will be produced. कौन प्रोड्यूस करवाएगा, एस्ट्रोजन. ये भी क्वेश्चन आपको याद रखनी है नीट पर्पस के लिए. LH सर्ज में कौन से हार्मोन आपको हेल्प कर रहे हैं, एस्ट्रोजन will stimulate the production of a large amount of LH and this process is known as, ये जो increase in LH, amount of increase in LH, that is luteinizing hormone, is known as LH surge and it will start around the 12th day of the average cycle. Suppose the period's day is 28 days. Okay, 28 days का साइकिल है, तो नेक्स्ट साइकिल 12th से 14 डेज जो उसका एक्चुअली 14th डे को ओव्यूलेशन होगा. ठीक है,
क्योंकि ओव्यूलेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 28 माइनस 14 दैट इज 14 डेज। अगर 35 डेज का साइकिल है, मैं यहाँ लिखती हूँ, अगर 35 डेज का साइकिल है देन 35 माइनस 14वां दिन, हर साइकिल के 14वां दिन ही ओव्यूलेशन होते हैं, तो इसको माइनस करिए 121, तो 21th डे कब, द नेक्स्ट पीरियड व्हेन शी इज गोइंग टू अटेन हर नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट मंथ के 21th डे she will be having her ovulation period. Okay, in that way we have to calculate the ovulation period. Okay, clear hai? The process known as LH surge, and that will 48 hours, 2 days, almost 1 to 2 days ovulation period, that egg remains active in the fallopian tube. After 2 days अगर स्पर्म नहीं आया या फिर कंसीव नहीं कर पाई वो फीमेल, तो वो एग खुद ही डिसअपियर हो जाएंगे, उसका और फिर काम नहीं है। ठीक है ना, चलो क्लियर है। अब हम बात करते हैं थर्ड फेज, दैट इज ल्यूटियल फेज। 2 फेज हो गया कंप्लीट, तीसरा फेज है ये। ड्यूरिंग दिस फेज द पिट्यूटरी हार्मोन्स FSH एंड LH cause the remaining parts of the dominant follicle to transform into corpus luteum which produces progesterone. एस्ट्रोजन का बात हमने किया, LH का बात किया, FSH का बात किया, बात रह गए थे प्रोजेस्टेरोन, जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं प्रोजेस्टेरोन। जिनमें प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है, इफ ए फीमेल हैज कंसीव एंड सी इज हैविंग सम अ बिट लेस ऑफ हार्मोन्स, एंड अगर हार्मोन की कमी होती है बॉडी में तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं फीमेल को, बहुत सारी चीज़ें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मफुल होगा, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी, प्री मैच्योर बेबी हो जाएगा, बेबी पहले हो जाएगा, है ना। तो हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन दैट केस व्हाट फीमेल डू, शी हैज़ टू कंडक्ट विद अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। उसके बाद क्या होगा, उसे हार्मोनल इंजेक्शंस या हार्मोन के टैबलेट्स दिए जाते हैं, जस्ट टू सी द इफ बोथ द ओवरीज आर वर्किंग करेक्टली और नॉट। ओके, चलो, तो प्रोजेस्टेरोन को क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। क्लियर है। तो इस फेज में क्या होता है, FSH और LH, जो मैंने अभी पीछे ल्यूटियल फर्स्ट फेज में कहा था आपको, FSH और LH जो है, व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डोमिनेंट फॉलिकल, जो डोमिनेंट फॉलिकल रह गए थे, कुछ पार्ट्स रह गए थे, कुछ मैच्योर होते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। और इसको, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, क्लियर है। तो जो फॉलिकल प्रोड्यूस हुए थे, मैच्योर एग हो गए थे, तो डोमिनेंट फॉलिकल के कुछ पार्ट जो रह चुकी थी, that will transform into corpus luteum, and that corpus luteum will produce the progesterone hormone. Okay, clear है। The increased progesterone in the adrenals start to induce the production of estrogen. जब प्रोजेस्टेरोन की मात्रा इंक्रीज, अगर इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन एड्रिनल ग्लैंड में, वो क्या करते हैं, that will induce the production of estrogen. जैसे ही प्रोजेस्टेरोन की लेवल इंक्रीज हो जाएगी, और वो इंक्रीज लेवल क्या करेंगे, एस्ट्रोजन के प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। क्लियर है। द लेवल ऑफ FSH एंड LH फॉल क्विकली ओवर टाइम। ओके, जैसे कि FSH और LH का लेवल जैसे ही बहुत जल्दी नीचे गिराएगा, बहुत जल्दी फॉल हो जाएगा, लेवल फॉल हो जाएगा उसका। दैट फॉलिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन ट्रिगर मेंस्ट्रुएशन एंड द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट साइकिल। क्लियर है। जब नेक्स्ट साइकिल कंटिन्यू होगा, जैसे कि पीरियड का 28 डेज का साइकिल होता है, ठीक है ना, जब भी नेक्स्ट साइकिल होने को होगा, ये जो 28 डेज का जो जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है 20, इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ओवेरियन साइकिल होते हैं, LH, FSH, एस्ट्रोजन सब अपने अपने हार्मोन्स को मेंटेन करके रखते हैं बॉडी को, है ना। तो जब LH और FSH की जो लेवल कम हो जाएगा, तो क्या होगा, उस वक्त क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन जो है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो ट्रिगर करेंगे कि अब मेंस्ट्रुएशन होना चाहिए। जब FSH, याद रखना, जब फीमेल पीरियड्स में रहती है, तो FSH और LH का जो हार्मोन है वो डिक्रीज हो जाता है, और जब लेवल डिक्रीज हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन ट्रिगर करता है मेंस्ट्रुएशन करनी, एंड नेक्स्ट साइकिल का शुरुआत हो जाता है, नेक्स्ट साइकिल की बिगिनिंग हो जाती है। ठीक है, चलो, तो ये जो डायग्राम है जो मैंने आपको दिखाया है, यूटेरिन इवेंट्स है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज,
देखो ओवेरियन हार्मोन लेवल, देखो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब ग्राफ में दिखाया हुआ है। ओवेरियन इवेंट क्या है, पहले डेवलपिंग फॉलिकल होंगे, फॉलिकल्स विल मैच्योर, ओव्यूलेशन होगा, फिर जो रह गया है ये डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेसिंग। हार्मोन्स कौन कौन से होंगे, एफएसएच, एलएच। यहाँ देखो एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, देखो 14th और 15th डे के बीच में देख रहे हो एफएसएच एलएच का इंक्रीज हो रहा है। फिर जैसे हमारा पीरियड्स नेक्स्ट साइकिल होने को है तो दिख रहा है आपको ये एलएच और एफएसएच में डिक्रीजिंग हो गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ कब है, 13 to 14 ओव्यूलेशन के टाइम में एलएच और एफएसएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उस टाइम वो हार्मोन इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल नीचे हो जाता है, देख रहे हैं 28 29 नेक्स्ट साइकिल जैसे बिगिन होगा प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है ट्रिगर करेगा, एलएच एफएसएच कम हो जाता है और ये प्रोजेस्टेरोन जो है ट्रिगर करके नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर करेगा। यूट्रन इवेंट्स में देखिए मेंसेस है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड, फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल रिलीज होंगे, ये ल्यूटियल फेज है और ये फिर अगेन नेक्स्ट साइकिल बिगिन। दिस जो मैंने आपको जो इवेंट्स बताए अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसी के बारे में, दैट इज द ओवेरियन साइकिल। क्लियर? अब हम बात करते हैं यूटरिन साइकिल। 3 साइकिल हो गया, अब लास्ट 3 रह गया। मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज menstrual bleeding. The flow of menses normally serves as a sign that a woman has not become pregnant. That means if in case of pregnancy क्या होता है, 9 months woman doesn't bleed. That means that blood is required for the formation of baby. इसलिए उनमें bleeding नहीं होती है 9 month तक। लेकिन जब एक woman regular periods attend कर रही है, that means she is not pregnant. Okay, and this is the sign that she is not pregnant, she is attending her menses every regular month. Clear? Regular menstruation lasts for a few days until usually 3 to 5 days. Average some women like 7 days भी होते हैं, 3 to 7 days भी होते हैं, 3 to 5 days, normally it's 5 days, but some women they used to bleed till 7 days. Average blood loss कितना होता है, 35 milliliters, ये भी नीट में आप याद रखना। एंड 10 to 80 ml कंसिडर्ड नॉर्मल। एवरेज जो होता है, एवरेज ब्लीडिंग कितनी होती है, 35 ml ब्लीडिंग इज होती है हर मंथ फीमेल की, और जो कि 10 to 80 ml जो है वो नॉर्मल कहा जा सकता है। अगर 80 ml तक ब्लीडिंग होती है दैट इज नॉट द एबनॉर्मल वन, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन नॉर्मल ब्लीडिंग। ओके, क्लियर? दिस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, second phase of uterine cycle. During this phase the estrogen causes the lining of the uterus to grow. Proliferative phase क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करते हैं, यूट्रस के लाइनिंग को ग्रो करते हैं। ये एस्ट्रोजन का इंपॉर्टेंट रोल होता है यूट्रस में, जब बेबी वॉर्म में रहते हैं तो इस फेज में क्या होता है, एस्ट्रोजन जो है यूट्रस को ग्रो करेगा। जब भी यूट्रस ग्रो होगा तभी तो, अगर बेबी ग्रो होगा तो उसको वैसा साइज चाहिए होता है यूट्रस का, उस टाइम एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत यूट्रस को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है। सिक्रेटरी फेज, दिस करेस्पॉन्ड्स टू द ल्यूटियल फेज ऑफ द ओवेरियन साइकिल। जो मैंने ल्यूटियन फेज आपको पढ़ाया था, सेम सिक्रेटरी फेज भी ल्यूटियल फेज की ओवेरियन साइकिल को करेस्पॉन्ड्स, मतलब सिमिलैरिटीज इज देयर। ओके, ड्यूरिंग दिस फेज द कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन विच प्लेज अ वाइटल रोल इन मेकिंग द एंडोमेट्रियम थिकन्स। ओके, इस फेज में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है दैट विल प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जैसे कि येलो कलर पिगमेंट जो रह गया था, फॉलिकल्स जो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स प्रोड्यूस कर दिए, दैट विल हेल्प इन द एंडोमेट्रियम थिकन्स। जो एंडोमेट्रियम यूट्रस याद है ना, यूट्रस का लेयर याद है ना, ये यूट्रस था ना, इसमें 3 लेयर थे ना, मेजो, एंडो जो था इनर लेयर है ना, तो एंडोमेट्रियम को थिकन मतलब एनलार्ज होना होगा ताकि बेबी वहाँ अच्छे से रहे वॉर्म में। ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट विल हेल्प इन द एंडोमेट्रियम को थिकन्स एंड दैट विल प्रिपेयर द यूट्रस। ओके, तो ये रहा सिक्रेटरी फेज। क्लियर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ओवेरियन साइकिल। अगर आपको अच्छा लगा हो आज का सेशन, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, so ovarian cycle is completed. हम next class में will try to complete the human reproduction. Okay, so with this I'll conclude my today's class.
थैंक यू सो मच।